Okay, so today we will do the graphical representation of various types of motion. First of all, we will learn three types of graph actually. We will learn displacement time graph, we will learn velocity time graph, and we will learn acceleration time graph. These are the three types of graph that we will learn. You can notice here displacement time graph, velocity time graph, acceleration time graph. Whenever we draw a graph to represent a motion, if this is, that a graph looks like this, a Cartesian plane looks like this, right? This is the x-axis, this is the y-axis, this you already know. And whenever we represent, we generally take this first quadrant, this one, the positive side of y and the negative positive side of x. Okay, but that doesn't mean that in some graph we cannot use this one or this one, the negative side of x and the negative side of y. If required we may use, but according to the scope of our syllabus in class 9, most of the graphs will be complete in the first quadrant only. So basically we will draw the graphs like this. This is the way to draw the graph. Now in the x-axis, the values of x 1 2 3 4 are actually the values of time, that is also in seconds. Generally in SI unit only we do. And in the y-axis, if we plot displacement, displacement means ST graph, displacement is denoted by S, VT graph, velocity is denoted by V, and AT graph, acceleration is denoted by A. So in the y-axis, if we put displacement, the values of the y are actually the value of the displacement, then it becomes a displacement time graph. Okay, and if the values of the y-axis, we take it to be value of velocity with respect to time, okay, then it is a velocity time graph. And if we draw acceleration in the y-axis, then it is a acceleration time graph. Now here a simple question may arise in your mind, that why are we always comparing with time? Why is always time in the x-axis? Why in the x-axis or values of x represented as time? Because you see, whenever we have learned motion, suppose you have learned uniform motion or non-uniform motion. For example, you have learned uniform motion or non-uniform motion. Okay, what have you actually learned? Uniform motion, or in uniform motion there can be, you have also learned about uniform velocity, non-uniform velocity, or uniform speed and non-uniform speed. These are the things you have learned. Okay, so whenever you have learned this, actually if I talk about uniform velocity and non-uniform velocity only, you have learned that if equal displacements are traveled at equal intervals of time, so you are comparing with time. If unequal displacements are covered with unequal intervals of time, or equal displacement at unequal intervals of time, okay, or unequal displacements at unequal intervals of time, equal displacements at unequal intervals of time, unequal displacements at equal intervals of time, or unequal displacements at unequal intervals of time, that is known as non-uniform motion, which is more practical. Okay, and in uniform motion you have learned equal displacements at equal intervals of time just. So this is the thing that you have learned. Okay, and you can notice here that always the factor of time, that how with respect to time the displacements are changing, so according to that the velocity becomes uniform or non-uniform. So you always try to compare the things with time. Okay, we always tend to compare the changes of displacement with time or velocity with time, which you will I will tell you. So that's why we always compare with time. That's why in x-axis we take time. I hope that you have understood just the basic thing that I have told you. Then the next basic
then the next basic thing you should understand about our thing is that, about our graph is that, what is the meaning, I mean, what is the meaning of a graph? What do we mean by a graph? Suppose, for example, when do we plot a graph? A graph, when do we plot? To represent what? Suppose, for example, a student is there, Ravi. Okay. You have seen Ravi today. Consider the day when you have seen him as first day or 0 days. Okay. You have not seen him before that, so that is considered as 0 days. On the 0th day, you saw Ravi is 151 centimeter long. I mean, tall. Okay. So, on the 5th day, you have find him 162 centimeter long. On the 10th day, you have found him 165 centimeter long. On the 15th day, you have found him 173 centimeter long. On the 20th day, you have found him 182 centimeter tall. Okay, so in this way, this is your data. Okay, you can show this data. See, it includes time. Now what we will do, we will plot this 0, here it is 0, x ka bhi 0, y ka bhi 0. This point is origin. So that is x ka bhi 0, y ka bhi 0. I hope you understand that. So on 0 day, it is he is 151. So he is somewhere here. On the 0th day, he is 1. So here in y-axis, you will plot the height. In y-axis, you will plot the height, and here you will plot the time. And on 151, so here you get 1 point. On 5th day, so 5th day is here, 10th day is here, 15th day is here, and 20th day is here. On the 5th day, you find him 162 centimeter long. So on the 0th day, you find him 151 here. On the 5th day, you found him 162 centimeters, so little bit up. So here it is suppose 162. So you found him on this like this. So another day, on the 10th day, you found him 165. So on the 10th day, 5th day, 10th day, you found him 165 centimeters. So somewhere here. Okay. On the this way, in the 15th day, you found him 173. So little bit, you will find 173 here. So it will be here. Okay. On the 15th day, on the 20th day, you will find him even here. The height will increase. So this is a graph joining the points. This represents the increase. This represents increase of Ravi's heights. Increase of Ravi's height. I hope that you have understood this concept. Okay, and each of the point is the coordinate. 0 comma 0 comma 151. This is 0 comma 151. Okay, 151. This is 5 comma 162. This is 10 comma 165. This is 15 comma 173. This coordinate of this point is 15 comma 173. So this is 20th comma 182. So now when you draw the graph, you have not noticed the middle days that what was his increase, right? You have directly observed on the 0th day, 5th day, 10th day, 15th डे 20th डे. लेकिन 18th डे में क्या था, सेकेंड डे में क्या था, थर्ड डे में क्या था, उसमें तो इंक्रीज हुआ था, तुमने तो ऑब्जर्व नहीं किया था. लेकिन अभी यहाँ से तुम निकाल सकते हो ग्राफ से. कौन सा निकालना है? 11th डे का निकालना है. तो यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे सीधा खींच दो. यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 11th डे में वो उतना था. यहाँ पे लगाओ, सीधा खींच दो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा. तो जितना भी डे, तो इसीलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं. जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे उसके हाइट का डेज के हिसाब से, अपने प्लॉट तो किया है, लेकिन जब आपको ग्राफ मिल गया तब आपको ये पूरा लाइन में बहुत सारा कोऑर्डिनेट्स मिलेगा और उस वजह से कोई भी डे में वो कितना था वो निकल जाएगा. और ये ग्राफ का शेप हमको बताता है कि वो इंक्रीज कर रहा था कंटिन्यूअसली. जैसे कि सोचो, और एक ग्राफ का एग्जांपल देता हूँ मैं, और एक डेटा का एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि डेज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ राइस,
जीरो नंबर डे में पहले दिन आप देखें राइस फ्री है तो कॉस्ट भी जीरो है उसका। सेकेंड डे में आप देखें कि राइस का कॉस्ट हो गया 50 रुपये। थर्ड डे में आप देखें राइस का कॉस्ट फिर हो गया 60 रुपये। फोर्थ डे में आपने देखा, ठीक है, डेज, फोर्थ डे में आपने देखा राइस का कॉस्ट हो गया 70 रुपये। फिफ्थ डे में आपने देखा राइस का कॉस्ट हो गया 150 रुपीज़। सिक्स डे में आपने देखा कि राइस का कॉस्ट हो गया 200 रुपीज़। ओके, कॉस्ट ऑफ राइस 1 kg पर kg। तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप क्या करोगे, अब टाइम को या डे को यहाँ प्लॉट करना, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ राइस को यहाँ पे, क्योंकि आप ये चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। जब दिन के हिसाब से आप देख रहे हो तो ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो हमेशा इसको डे को नीचे रखना है और कॉस्ट ऑफ राइस। तो 0th डे में 0 था तो पहला यहीं पे होगा, 0,0 पहला कोऑर्डिनेट होगा, डे कॉमा राइस। 2,50 दूसरा, 3,60 तीसरा कोऑर्डिनेट होगा, 4,70 चौथा, 5,150, देन 6,200। तो आपको क्या करना है, 2 जब है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो 2 जब है तब 50 रुपीज़ है, तो शायद कहीं पे यहाँ पे 50 रुपीज़ है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा। यहाँ पे अगर 50 है तो 50 के ऊपर यहाँ पे 70 है, सोचो ये 50 है, ये 70 है, तो यहाँ पे कहीं पे 150 है, थोड़ा ऊपर होगा ना, और यहाँ पे ऊपर कहीं पे 200 है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। तो आपको एकदम 0 से स्टार्ट करके एक स्ट्रेट ऐसा लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इंक्रीज, मतलब डे, नंबर ऑफ डे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ राइस, ठीक है। डायरेक्टली ये अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो सीधा जैसे यहाँ पे दिन के दिन वो लंबा होता जा रहा था, तो दिन भी बढ़ रहा था तो वो भी लंबा हो रहा था, इसलिए ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा जब बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है ग्राफ का कॉन्सेप्ट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखता हूँ। सोचो नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ डेज needed to complete a work, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल, अगर एक जन काम करेगा तो 50 दिन लगेगा कंप्लीट करने में, 2 जन काम करेगा तो 25 दिन लगेगा, 3 जन काम करेगा तो 12.5 डेज लगेगा, 4 जन काम करेगा तो 7.25 डेज लगेगा, 6.25 डेज लगेगा, और ऐसे करके होता है। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसको आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आपने डेज प्लॉट किया, एक्स का वैल्यू, डे हो गया आपका एक्स का वैल्यू, और ये हो जाएगा वाई का वैल्यू। तो एक्स कमा वाई हो जाएगा 50,1, 25,2, 12.5,3 और 6.25,4। सो अब क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 50 25, सॉरी। तो यहाँ पे अगर डेज प्लॉट करोगे, डेज को अगर एक्स एक्सिस को यहाँ पे प्लॉट करोगे, तो सोचो ये 5 दिन है, ये 10 दिन, ये 20 दिन, ये 25 दिन, ये 50 दिन, ठीक है। और ये नंबर ऑफ पीपल, 1 पीपल, 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल। अच्छा, अगर 1 पीपल काम करेगा, 50 दिन काम करने के लिए 1 पीपल काफ़ी है, तो 50 दिन के लिए 1 आएगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 50 एक्स का वैल्यू है डेज को नीचे रखने से, और 1। फिर 25 दिन काम करेगा तो 2 पीपल, तो यहाँ तो 12.5 कुछ यहाँ पे होगा, 12.5 तो 3 जन, 6.25 कुछ यहाँ पे होगा तो 4 जन। ऐसा ग्राफ मिला आपको।
ऐसा नीचे की तरफ जाते हुए, तो ये इस ग्राफ में डिक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ में डिक्रीज हो रहा है एक के तुलना में। जब देखो x बड़ा है, ठीक है, तो y कम है। x का वैल्यू जब बड़ा है तो y का वैल्यू कमती है, और y का वैल्यू जब ज़्यादा है x का वैल्यू कमती है। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। और मैं और एक एग्जांपल दूं, जैसे प्रेशर और एरिया, ठीक है। अगर एरिया 10 है तो उसमें प्रेशर 5 पास्कल है। एरिया, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर एरिया 20 है, सोचो एरिया अगर 100 है तो प्रेशर है 50। एरिया अगर 200 है तो प्रेशर हो जाएगा 25। एरिया अगर 300 है तो ये हो जाएगा, इसको मैं 60 लेता हूँ तो आसानी होगी, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। और एरिया अगर 400 हो जाएगा तो एरिया प्रेशर हो जाएगा 7.5। तो देखो एक घट बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो ऐसे वाले ग्राफ्स कैसे होते हैं? अगर आपने एरिया यहाँ पे प्लॉट किया और प्रेशर अगर यहाँ पे प्लॉट किया, तो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर प्रेशर दाबते हो ना, तो वही बता रहा हूँ। एरिया अगर बढ़ता जाएगा तो प्रेशर घटता जाएगा। तो यहाँ पे सोचो 100, 200 ये एरिया का है, थोड़ा गंदा हो गया सॉरी, 200, फिर 300, फिर 400, फिर यहाँ पे 60, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब जब प्रेशर 60 है, एरिया 100 है, मतलब 100 के लिए 60 यहाँ पे, ठीक है। ये x इसको पकड़े हो एरिया को, y प्रेशर को पकड़े हो, तो 100,60 ये हो गया आपका पहला कोऑर्डिनेट। तो उसके हिसाब से 30,200 मतलब यहाँ पे आ गया। फिर 300 के लिए हो गया 15 और नीचे आ गया, और 400 के लिए हो गया 7.5 और नीचे आ गया। तो आप अगर मिलाओगे तो आपको ऐसे स्ट्रेट नीचे की तरफ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर होगा तो ये घट रहा है, घटता हुआ ग्राफ है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो एक्चुअली ग्राफ को हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बताते हैं। ये एग्जांपल्स क्लियर हो जाने से मैं तुमको नया चीज़ बताऊंगा। तो बेसिकली हम लोग क्या सीखे? बेसिकली हम लोग सीखे कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इफ़ देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज़, if there are two physical quantities, suppose A and B, imaginary physical quantities, it may be time and mass, it may be acceleration and time, it may be velocity and time, it may be displacement acceleration, it may be pressure and area, it may be force and mass, anything it can be. Okay, when you compare two physical quantities and when with respect to one physical quantity another changes, for example if displacement changes with respect to time, we say it is motion, right? So in that way, when velocity changes with respect to time, when displacement changes with respect to time, we call it velocity. When velocity changes with respect to time, we call it acceleration. Okay, so when all these things we do, when we compare, okay, in one axis we take one physical quantity, suppose B, in another axis we take another physical quantity, suppose A, and the pattern of the graph, if it is like this, you will understand that if B increases, A also increases. Okay, and if the pattern of the graph is like this, and in that case we say A is directly proportional to B. A is directly proportional to B means if we write like this, A is directly proportional to B. This means A is directly proportional to B. Okay,
And suppose for example here, if the graph is like A is here and B is here, and if the graph is like this, then we say A is inversely proportional to B in this way. If A is increasing, B is decreasing. देखो B का वैल्यू जहाँ पे इस साइड में इंक्रीज हो रहा है ना, X का वैल्यू, यानी B का वैल्यू यहाँ पे हाइस्ट है, तो इस पॉइंट के लिए A का वैल्यू तो कम है ना, तो B ज़्यादा होता है, A कम होता है, और जब A ज़्यादा होता है तब B कम होता है। यहाँ पे B का वैल्यू कम है, ठीक उसी तरह B का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है तो A का वैल्यू भी यहाँ पे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब इफ़ A इंक्रीजेस B ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड इसको बोलते हैं A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, इफ़ A इंक्रीजेस B डिक्रीजेस, A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, प्रोपोर्शनल टू B। तो ऐसे हम लोग चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में रखना चाहिए। अभी तो ये उतना ज़रूरी नहीं होगा इस चैप्टर में, लेकिन आने वाले सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। और इसका मैंने सब्सिक्वेंट एग्जांपल्स भी पहले वाले वीडियोस में आप लोगों को दे चुका हूँ कि कैसे ये वैलिड है मेरा बात, मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ग्राफ देख के पता चलता है, ठीक है। अगर कोई आपको अननोन एक ग्राफ दे देगा, ठीक है, तो आपको ग्राफ देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर m एक फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे k है, तो m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k, क्योंकि ऐसा है। और अगर कोई ऐसा बताएगा m और k, तो इस ग्राफ से पता चलता है कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। ग्राफ देख के डायरेक्ट पता चल जाएगा कि दोनों में रिलेशन क्या है, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, एक घटने से दूसरा घटता है कि नहीं। तो हालांकि ये एक तो नॉलेज है जो हमारे दिमाग में रखना चाहिए इस पेज में जो है, लेकिन और एक नॉलेज है ग्राफ से कि ग्राफ क्या करता है, हमको चेंज को बताता है, तो वो भी यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो सीखे, हम लोग सीखे कि अगर एक ग्राफ में दो फिजिकल क्वांटिटी A और एंड B को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो ग्राफ को देख के पता चल जाता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये तो पता चल जाता है। अब इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जैसे देखो कोई ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, या फिर कोई ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब है तुमने वैल्यू को जीरो से एनालाइज किया है, या इसका जीरो से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब है कि सपोज सोचो यहाँ पे टाइम था, तो टाइम जब जीरो था तब सोचो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो चुका हो, और या सोचो यहाँ पे वेलोसिटी है, तो थोड़ा सा वेलोसिटी वहाँ पे उसका हो चुका था। नहीं तो अगर यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे अगर वेलोसिटी है और अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब सोचो टाइम जब जीरो था, क्योंकि यहाँ पे टाइम का वैल्यू भी जीरो है, वेलोसिटी का वैल्यू भी जीरो है, तब वेलोसिटी का वैल्यू भी जीरो था। लेकिन यहाँ पे जब टाइम का वैल्यू जीरो था तो थोड़ा सा ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ से हुआ है, तो 0, समथिंग विल बी देयर, सपोज 5, तो तब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखो। इस वाले ग्राफ को देख के हमेशा पता करो कि ये जो एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है, अगर a है और यहाँ पे b है, जब a का वैल्यू जीरो था तब b का वैल्यू जीरो नहीं था, कुछ एक था। फिर जब a बढ़ा है तब b भी बढ़ा है, ऐसे। तो इसीलिए ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे गया है, क्योंकि वैल्यूज़ इंक्रीज़ होते होते ऐसे गया है, ठीक है। लेकिन जीरो से स्टार्ट होने के बावजूद a का वैल्यू जब जीरो था, b का वैल्यू जीरो नहीं था, इसीलिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ऐसा वाला ग्राफ देखने से हमेशा याद रखना कि जब a का वैल्यू जब ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, तब a अगर है यहाँ पे, टाइम की जगह में और कोई फिजिकल क्वांटिटी रह सकता है, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह में भी और कोई फिजिकल क्वांटिटी रह सकता है। जब a का वैल्यू जीरो था तब b का वैल्यू भी जीरो था, इसीलिए स्टार्ट से शुरू ये है, वह यहाँ से हुआ है। जैसे ये तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों में a इंक्रीज़ हो रहा है तो b इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ऐसा मिला कोई कभी आपको कि ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हाईएस्ट वैल्यू में y का वैल्यू जीरो हो गया है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x में y का वैल्यू जीरो हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ x है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ y है, तो वैल्यू ऑफ यहाँ पे y का वैल्यू घटता जा रहा है, राइट। x का वैल्यू जब बढ़ता जा रहा है, y का वैल्यू घटता जा रहा है। x का ज़्यादा वैल्यू के लिए आप यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, तो x का वैल्यू जब ज़्यादा है तो y का वैल्यू कम है,
एक्स का वैल्यू जब और ज़्यादा है, वाई का वैल्यू और कम है, जैसे एक्स का वैल्यू ज़्यादा है, एक्स का वैल्यू कम है, तो वाई का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जब एक्स का वैल्यू 0 था तब वाई का वैल्यू कुछ एक था, फिर इंक्रीज़ होकर कुछ एक हुआ। अब ये एक्स कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई से बता रहा हूँ। तो ऐसे इंक्रीज़ होकर यहाँ पे आया है। ठीक है, तो वाई का वैल्यू भी डिक्रीज़ होकर यहाँ पे आया है, इसीलिए पॉइंट आपको यहाँ पे मिला। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से इंक्रीज़ होकर अगर यहाँ आया है तो यहाँ से डिक्रीज़ होकर यहाँ आया होगा, तो इसीलिए यहाँ पॉइंट मिला। लेकिन होते 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 हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स जब गया है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स जब पहुँचा है, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 बन चुका है। ठीक है ना, तो इसीलिए ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता, अगर ऐसा होता तो कुछ एक एक्स का वैल्यू है, उसके लिए वाई का वैल्यू हाईएस्ट था, और वाई का वैल्यू जब हाईएस्ट है कुछ एक, सॉरी एक्स का वैल्यू जब हाईएस्ट है यहाँ पे, तो वाई का वैल्यू कुछ एक है यहाँ पे, 0 नहीं हुआ है, लग जाने का मतलब है 0। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना चाहिए। ये दोनों चीज़ मुझे पता है कि ये थोड़ा सा टफ चीज़ है, लेकिन अगर थोड़ा अच्छे से सोचोगे तो समझ में आएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे पूछना। पिछले वाले वीडियो में मैंने जो बताया है वो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मतलब पिछले वाले सेक्शन में थोड़ा सा जो है रिपीट कर देता हूँ। क्या एक्चुअली है कि ये अगर ऐसा है तो ग्राफ में अगर आपने यहाँ से बिगिन किया है तो इसका मतलब ये क्या है, सोचो यहाँ पे आपने एक ए क्वांटिटी को, यहाँ पे एक बी क्वांटिटी को प्लॉट किया है। तो अगर आप देखोगे तो बी जितना बढ़ रहा है ए भी बढ़ रहा है, इसीलिए तो ऊपर की तरफ आया है। अगर प्रीवियस वीडियो समझ में आया होगा तो ये समझ में आया होगा कि प्रीवियस पोर्शन समझ में आया होगा वीडियो का, तो ये भी समझ में आया होगा कि ये कंटिन्यूसली ए और बी का अगर आप देखोगे तो ए भी यहाँ पे एक वैल्यू है, तो यहाँ पे एक वैल्यू है, दोनों वैल्यू मिला के यहाँ पे एक पॉइंट आया है। यहाँ पे एक बी का वैल्यू है, तो इसको अगर ऐसे यहाँ पे मिलाओगे तो यहाँ पे मिलाओगे तो मिल जाएगा। तो इंक्रीज़ ही हो रहा है ना, बी जब जा रहा है तो यहाँ पे तो ए का वैल्यू इंक्रीज़ ही हो रहा है। लेकिन हाँ, जब बी का वैल्यू 0 था, यहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं था, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ए का वैल्यू कुछ एक था। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ए का वैल्यू भी 0, बी का वैल्यू भी 0, उसके बाद बी का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, फिर ए का वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। तीसरी चीज़, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अगर तुम ऐसा ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब जब बी का वैल्यू 0 था तब ए का वैल्यू हाईएस्ट था या कुछ एक था, 100 था। फिर बी का वैल्यू जितना इंक्रीज़ करता गया, ऐसे मिलाओगे तो ए का वैल्यू डिक्रीज़ करता गया, यहाँ पे डिक्रीज़ करता गया। लेकिन अगर आपका ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब बी का वैल्यू जब 0 था तब ए का वैल्यू भी 0 था, इसीलिए यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं किया है। जब बी का वैल्यू कुछ एक था तब ए का वैल्यू भी कुछ एक था, फिर बी का वैल्यू बढ़ाया होगा। बी का वैल्यू जब कुछ एक था तब ए का वैल्यू भी कुछ एक था, फिर बी जब बड़ा होगा ए घटा होगा, इसीलिए ऐसा मिला है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर आपको ऐसा ग्राफ मिल जाए, ऐसा वाला, तो यानी ए घटते 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 बी का इंक्रीज़ होते 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 हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बी में ए 0 ही बन गया बेचारा। ठीक है, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब ये है बी का वैल्यू जब 0 था तब ए हाईएस्ट था, फिर ऐसे आया। और अगर ऐसा ग्राफ मिले आपको कि दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सॉरी दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मैंने समझा दिया था शायद कहीं पे, यहाँ पे। ठीक है, तो बी का वैल्यू जब 0 था, ए का वैल्यू हाईएस्ट था, बी इंक्रीज़ हो जा रहा है तो ए डिक्रीज़ हो जा रहा है, इसीलिए ये पॉइंट हमेशा घटते घटते आया है। ठीक है, और जब हाईएस्ट बी का वैल्यू पहुंचा है तो ए का वैल्यू 0 हो गया, इसीलिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। तो ये चीज़ दिमाग में अच्छे से घुसा लो, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछना। अच्छा, तो और एक एस्पेक्ट है ग्राफ का जो भी दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आपने ए और बी दोनों के ग्राफ को ऐसा स्ट्रेट देखा,
या फिर ऐसा स्ट्रेट देखा, या फिर ऐसा स्ट्रेट देखा, अगर आपने स्ट्रेट लाइन देखा तो इसको बोल सकते हो यूनिफॉर्म इंक्रीज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही। अगर आपने ऐसा भी देखा होगा जो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो भी यूनिफॉर्म इंक्रीज। लेकिन अगर आपने ऐसा देखा, ये ऊपर का तरफ गोल करके बेंड होता हुआ, अगर आपने ऐसा देखा ऊपर की तरफ यहाँ से गोल्ड करके बेंड करता हुआ कहीं से भी, तो याद रखना ए इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी बढ़ता है तो ए भी बढ़ता है, बट नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ता है ये, ठीक है। ए इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू बी बट नॉन यूनिफॉर्मली, ये ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। अब आप पूछ सकते हो कि क्यों सर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, हम लोग क्यों बताएं, और इसमें नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है हम लोग क्यों बताएं। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे देना चाहिए। देखो, जब आप स्ट्रेट लाइन के लिए देखोगे तब सोचो यहाँ से यहाँ का इंक्रीज़, यहाँ से यहाँ का इंक्रीज़, यहाँ से यहाँ का इंक्रीज़, ये इतना इंक्रीज़ के लिए आपको ए का इंक्रीज़ भी इतना ही मिला, इतना इंक्रीज़ के लिए आपको ए का इंक्रीज़ भी इतना ही मिला, इतना इंक्रीज़ के लिए आपको बी का इंक्रीज़ भी इतना ही मिला। मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ बी में इक्वल इंटरवल्स ऑफ ए इंक्रीज़ हुआ है। सर ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा वाला ग्राफ है। ठीक है, होने दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से यहाँ सोचो, तो इसको मिलाओ, तो यहाँ पे अगर अच्छे से मिलाओगे स्ट्रेट लाइन से तो इतना, तो यहाँ से यहाँ तो ये इतना। हो सकता है कि बी जितना तुलना में बढ़ रहा है ए छोटे छोटे तुलना में बढ़ रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन हाँ इक्वली बढ़ रहा है। ठीक है, हर एक इक्वल इंटरवल के लिए इक्वली बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो इस वजह से इसको यूनिफॉर्म इंक्रीज़, इसको भी यूनिफॉर्म इंक्रीज़। इसमें हो सकता है बी जितना तुलना में इंक्रीज़ हो रहा है ए उससे ज़्यादा तुलना में इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से लोगे तो इसको मिला दोगे तो ए का इंक्रीज़ ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक लोगे तो यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, तो ए का इंक्रीज़ ज़्यादा करके इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हाँ इक्वल करके हो रहा है, इक्वल करके हो रहा है। तो इसीलिए इसको यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बी का इंक्रीज़ जितना हो रहा है ए का इंक्रीज़ यहाँ पे थोड़ा सा है, बी का इंक्रीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, तो ए का इंक्रीज़ वहाँ पे उतना हुआ ही नहीं। देखो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसीलिए ऊपर की तरफ नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज़। ठीक उसी तरह अगर आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई, ग्राफ देख के ही समझ में आ जाएगा अभी से, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर ऐसा है कि आपको ऐसा वाला ग्राफ मिले नीचे की तरफ बेंड किया हुआ, ठीक है, नीचे की तरफ बेंड किया हुआ ग्राफ मिले, ठीक है, तो आप सोच लोगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज़ है। क्योंकि अगर आपको ऐसा स्ट्रेट में लाइन मिले नीचे की तरफ तो ये यूनिफॉर्म डिक्रीज़ है, ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ कर रहा है, और ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ चीज़ है ये बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, इसको अच्छे से पहले इसके बेसिक को दिमाग में घुसाना पड़ता है, तब जाके ये सब ग्राफ एकदम इजी लगने लगती है। तो ग्राफ का जितना भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको देने का कोशिश किया है, ठीक है। तो और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है जो मैं दूंगा, लेकिन मैंने पूरे चीज़ को पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ग्राफ हमेशा ड्रॉ किया जाता है एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से। एक्स में एक आएगा फिज़िकल क्वांटिटी, वाई में एक फिज़िकल क्वांटिटी आएगा, और एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का चेंज कैसा हो रहा है उसी चीज़ को ग्राफ बताया
जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ सीखेंगे। हमेशा टाइम को एक एक्स एक्सिस में रखा जाता है। इन्फॉर्मेशन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में रखा जाता है। टाइम को हमेशा कहाँ पे रखा जाता है? एक्स एक्सिस में रखा जाता है। तो ये दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज, ये सब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन चेंज। लेकिन ये सब ऑब्जर्व करने से पहले, ये सब सीखने से पहले हम लोग को ग्राफ का नेचर सीखना चाहिए। कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हमेशा याद रखना कि टाइम के रिस्पेक्ट में हाइट इंक्रीज़ हो रहा है, या कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस में है उसके रिस्पेक्ट में ये जो वाई एक्सिस में आपने फिजिकल क्वांटिटी को प्लॉट किया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है वो टाइम दर्शाता है। 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, या 0 डे, 5 डे, 10th डे, 15th डे, ऐसे करके ये कोई भी क्या दर्शाता है? ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ होंगे ये हमारा हाइट का वैल्यू दर्शाता है सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तब वही वैल्यू एक्स और वाई है। और हमेशा हर एक कोऑर्डिनेट में अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई का वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। लेकिन अगर एक उल्टा ग्राफ है तो अगर उल्टा ग्राफ है तो यहाँ पे x का वैल्यू देखो, जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो y का वैल्यू घट रहा है, और ये हमको ऐसे मिला के पता चलता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे x का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है तो y का वैल्यू कम आ रहा है। तो घटता हुआ ग्राफ ऐसा होता है और बढ़ता हुआ ग्राफ जो है वो ऐसा होता है। ये मेरा बेसिक पॉइंट है। और हर एक कोऑर्डिनेट में, हर एक पॉइंट में आपको नया नया कोऑर्डिनेट मिलेगा, और x, y होता है जो एक x का वैल्यू दर्शाता है और एक y का वैल्यू। तो चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स देखने से भी कैसे कैसे अलग अलग कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आप लोगों को, तो उस हिसाब से भी हम लोगों को पता चल ही जाता है कि कैसा हो रहा है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने समझाया था। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बात भी मैंने समझाया था कि ऐसा ग्राफ देखोगे तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा ग्राफ देखो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए घट रहा है, यहाँ पे बी पे रेस्पेक्ट में ए बढ़ रहा है। मतलब बी के रेस्पेक्ट में मतलब बी भी बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ रहा है, यहाँ पे बी बढ़ रहा है तो ए घट रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना पड़ता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए इंक्रीज तो बी इंक्रीज, सॉरी बी इंक्रीज तो ए इंक्रीज, और बी इंक्रीज तो ए डिक्रीज, और बी डिक्रीज तो ए इंक्रीज। ठीक है, तो ये है एक। और जो चीज़ मैंने यहाँ पे सिखाया है कि कब आपको सोचना है ग्राफ देख के कि ये 0 से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे ये दर्शाता है कि यहाँ पे x 0 नहीं, x 0 है, कॉमा y का कुछ एक वैल्यू है, यानी वेलोसिटी का कुछ एक वैल्यू है, y यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, तो यानी 0 अगर टाइम है यहाँ पे तो 0th सेकेंड में वेलोसिटी कुछ एक था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखाता है कि 0th सेकेंड में वेलोसिटी नहीं था, यानी बॉडी रेस्ट में था। तो ऐसे आपको ग्राफ को इंटरप्रेट करना चाहिए। यहाँ पे 0 से घटते हुए, ठीक है, 0 से घटते हुए आया है तो फिर से 0 बना है क्या? सर्कल बना है? नहीं नहीं नहीं, y का वैल्यू 0 है, सॉरी x का वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू तो कुछ एक है। x का वैल्यू जब आगे बढ़ा यानी इंक्रीज़ हुआ तो y का वैल्यू डिक्रीज़ हुआ, इसीलिए नीचे की तरफ आता गया। और डिक्रीज़ होते होते जब x का वैल्यू हाईएस्ट आया तो कुछ एक x का वैल्यू में y का वैल्यू 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ तक अगर ग्राफ आया है तो ना तो कुछ एक x का वैल्यू के लिए y का वैल्यू कुछ एक हाईएस्ट था, तो x का वैल्यू ना तो 0 था, ठीक है, और 0x का वैल्यू के लिए या 0 टाइम का वैल्यू के लिए आपका वेलोसिटी का कोई 0 वैल्यू था ही नहीं, वो कुछ एक वेलोसिटी में था। ठीक है, 0 के लिए कुछ एक था ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और 0 में आके ख़त्म भी नहीं हुआ है। x बढ़ेगा या टाइम बढ़ेगा, टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा तो वेलोसिटी आके, यानी यहाँ पे कार जा रहा होगा तो कार कभी स्टॉप ही नहीं हुआ, इसका वेलोसिटी 0 होता है x एक्सिस में। ठीक है, हमेशा याद रखना y 0 होता है x एक्सिस में, x 0 होता है y एक्सिस में। तो ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने क्या समझाया था, यहाँ पे वही चीज़ मैंने दोबारा समझाया था, पॉइंट नहीं है। और ये सब चीज़ें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैंने तो समझा ही दिया है। इक्वल इंटरवल्स ऑफ बी में इक्वल इंटरवल्स ऑफ ए, चाहे देखो ये तो इक्वल है और ये तो इक्वल है तो और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको इक्वल करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें ये सारे पार्ट्स इक्वल होना मांगता है। ये छोटे छोटे, तो ये अगर नीचे की तरफ है, ये थोड़ा अगर ऊपर की तरफ है, ये थोड़ा और ऊपर की तरफ है, तो डजंट मैटर, यूनिफॉर्म ही है। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ बी में इक्वल इंटरवल्स ऑफ ए है। हालांकि बी का ईच इंटरवल इक्वल है
उसके लिए ए का ईच इंटरवल इक्वल है, बी का इंटरवल और ए का इंटरवल इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गोल कार्व हो जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन गोल कार्व अगर ऊपर की तरफ उठेगा तो इंक्रीज होता है हमेशा, बी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में वाई इंक्रीज हो रहा है, और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अब बात यह है, एक नया टॉपिक, स्लोप ऑफ अ ग्राफ, वीडियो बोल रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप ऑफ अ ग्राफ का मतलब है, सोचो, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए और बी को आपने प्लॉट किया है, ठीक है। ए का वैल्यूज़ यहाँ पे है, बी का वैल्यूज़ यहाँ पे। तो ए और बी को जब आपने प्लॉट किया है, स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब, सोचो आपका एक ग्राफ है ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। तो इसका मतलब है ये किसी भी पॉइंट में लो, किसी भी पॉइंट में, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जनरली अभी तो बच्चे हैं तो पहली बार सीख रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट से ही लो। ऐसे अगर ड्रॉ कर दोगे सीधा एक लाइन, तो ये लाइन बिल्कुल वाई एक्सिस का पैरेलल में है ना, तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूसली इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ ए प्लॉट किए जा रहे हो, राइट। तो वो तो दूसरा बात है, लेकिन यहाँ पे जो ए का वैल्यू है, जहाँ तक ये ग्राफ आया है, अगर ये ग्राफ यहाँ तक आता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक, यहाँ से लेके ऐसे, तो यहाँ से आपने प्लॉट किया है, तो इसका जितना भी वैल्यू होगा, सोचो 10 वैल्यू है या कुछ भी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी उसका 10 यूनिटी वैल्यू होता है। अगर आपने हाइट प्लॉट किया है तो 10 सेंटीमीटर, अगर आपने वेलोसिटी प्लॉट किया है तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आएगा। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया है तो 10 मीटर्स, तो यहाँ पे 10 मीटर्स हो जाएगा। जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, क्यों नहीं पता था, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक उसे। इस वैल्यू को इस पॉइंट से लिए हो, तो इस पॉइंट में एक्स का वैल्यू ये है, राइट। एक्स का वैल्यू तो ये यहाँ से उठ के आया है ना, एक्स का वैल्यू भी ये है। तो x का जितना वैल्यू है, सोचो 5, तो अगर आप 10/5 कर दोगे तो जो 2 आंसर आ रहा है, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब एक्चुअली कुछ भी नहीं, ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक a का जितना वैल्यू है, इसको अगर मैं a पकड़ूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर b का जितना वैल्यू, इसको अगर b पकड़ूँ, तो a/b कर देने से आ जाता है स्लोप। बस, किसी भी ग्राफ का स्लोप। सर इसमें, हाँ, यहाँ पे a प्लॉट किए हो, b प्लॉट किए हो, a का जितना भी वैल्यू 10 आए, 20 आए, 5 आए, 50 आए, ठीक है, दिस वो यहाँ पे आ गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो अब सर आप बोल रहे थे किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ से खींच दिए, ठीक है, आप इस पॉइंट से भी ले सकते हो, ठीक है, इस पॉइंट से लेके यहाँ पे ऐसे खींच दिया सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी वैल्यू आ रहा है, इस वाई एक्सिस से इसको ले लो, सोचो 7 आ रहा है वैल्यू, तो 7 यहाँ पे हो गया, 7 यूनिट्स। और यहाँ पे y का वैल्यू, x का वैल्यू जितना भी आ रहा है, सोचो 3 आ रहा है, तो 7/3 आपका हो गया स्लोप, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो सर हम इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, हाँ, तो स्लोप निकल जाएगा। किसी भी पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हो, याद रखना, किसी भी पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट से, ठीक है। इस चीज़ को बताया जाता है स्लोप। ये स्लोप का कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। वाले वीडियो में जो देखा वो एक स्लोप का कॉन्सेप्ट है, दूसरा स्लोप का कॉन्सेप्ट है ऐसा, मतलब सेम ही चीज़ आएगा। जैसे कि स्लोप को चेंज भी तो कहा जाता है ना, तो इस पॉइंट से भी निकाल सकते हो। क्या करना है, बस ऐसे सीधा लाके ज्वाइन कर देना है, ठीक है, सीधा लाके ज्वाइन कर देना है। तो जब आप सीधा लाके ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हो, ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हो, ठीक है, तो सीधा लाके ऐसे जब ज्वाइन कर दे रहे हो, ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्लोप निकल सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी स्लोप निकलेगा। कैसे, आप सीधा ये वैल्यू को लो, ये सोचो वैल्यू है, ये a प्लॉट किया था यहाँ पे, तो सोचो ये a2 है, यहाँ पे सोचो a1 है, तो ये आपका हो जाता है a2 - a1, और ये हो जाता है, ये अगर b है तो यहाँ पे आपका b1 होता है, और यहाँ पे आपका b2 होता है, तो ये आपका हो जाता है b2 - b1। तो आपका स्लोप हो जाता है a2 - a1 by b2 - b1। तो ये भी याद रखो
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है जो मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को और अच्छी तरह से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।